کیا ہو رہا ہے ادھر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ 4 آدمی تھے جو چپکے سے چھاؤنی کے اندر شامل ہو گئے تھے. 3 بھاگ گئے ہیں، 1 کو پکڑ لیا ہے. خاموش! میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جاؤ. لٹیرے ہو. خدا لعنت کرے زحاق کے بھیجے ہوئے لٹیروں پر. کل تک ابا محمد کے نام سے لوٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اغوا کر رہے تھے. اور اب ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. اس کو چھاؤنی کی طرف لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو. لے جاؤ اسے، لے جاؤ، اڑا دو اس کی گردن. کس نے تمہیں حکم دینے کی اجازت دی ہے؟ لٹیرے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. زحاق نے انہیں بھیجا ہے. میرا ان کے ساتھ سامنا ہو چکا ہے. کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں سردار، اس کو موقع نہیں ملا. اس کو آزاد کر دو. سردار، نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ اس کو آزاد کر دو. جرم سے پہلے سزا نہیں ہوگی. جاؤ اپنے خیموں میں جا کے سو جاؤ. چلو جاؤ. سردار، ہم جنگ میں ہیں. وہ لٹیرا ہے. کچھ دیر اور انتظار کر لیتے تو وہ اعتراف کر دیتا. مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ لٹیرا ہے. پھر بھی آپ نے اسے آزاد کر دیا اس لیے کہ تم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا. اگر میں پہلے پہنچ جاتا تو بے شک اس کی گردن اڑا دیتا. کیا ہوا حرب؟ کچھ نہیں. اس نے نہیں بتایا کہ لٹیرے کو کیوں آزاد کیا؟ بتایا. بتایا؟ اس نے کہا اگر میں پہلے پہنچ جاتا تو یقیناً اس کی گردن اڑا دیتا. لیکن چونکہ تم... واقعاً ایسا کہا؟ ہاں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا خود غرض اور خود خواہ شخص حسن ابن علی کے لشکر کا سردار ہو سکتا ہے؟ کیا بتاؤں؟ جو آج میں نے اس شخص میں دیکھا ہے اس نے واقعاً مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے. سیاست نہیں جانتا ہے، مغرور ہو گیا ہے اور حکم ایسے چلاتا ہے جیسے ابلیس کا حکم ہو. کیسے صفین میں تھا اور علی مرتضیٰ کے ساتھ تلوار چلائی؟ خوارج بھی تو صفین میں تھے. ٹھیک کہتے ہو، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. نہیں احمد، بھول جو کچھ میں نے تم سے کہا. مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھ سے غلطی ہو گئی. اب رہنے دو. ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. وہ لشکر کا سردار ہے. شاید اس کی بات ٹھیک ہو. شاید ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہو. شاید مجھے اس کی اجازت کے بغیر حکم نہیں دینا چاہیے تھا. ہمیں اس کی لیاقت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس پہ شک نہ کروں، لیکن نہ میں لشکر میں ہوں نہ اس نے مجھے حکم دیا ہے جو میں اس کی اطاعت کروں. میں صبح چھاؤنی چھوڑ دوں گا اور ابن عباس کے پاس چلا جاؤں گا. یقین رکھو، جو کچھ اس شخص کے بارے میں دیکھا اور سنا ہے، ابن عباس کو
सब कुछ बता दूंगा। हिलना मत वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। क्या कर रहे हो सरदार? मेरा इरादा बुरा नहीं है। मुझे सच बता, तू कौन है और मेरे खेमे में क्या कर रहा है? मैं सिर्फ देखने आया था कि वो अमानत आप तक पहुंचती है या नहीं। तो वो थैली तुमने लटकाई थी? जी, क्यों? हमसे कहा गया था। किसने कहा था? जो तुम्हें बुलवाना चाहता है। मुझे बुलवाना चाहता है? कौन मुझे बुलवाना चाहता है? मुआविया इब्न अबी सुफियान। तो तू जासूस है? जी सरदार। शाम के लश्कर से? जी सरदार। वो मलऊन हिंदा की औलाद सोचता है एक थैली सोने के सिक्के से मुझे खरीद लेगा। नहीं सरदार, एक थैली से नहीं। वो देखे सरदार, बाकी वहां है। ये सब तुम्हारा है सरदार, सब तुम्हारा। आओ सरदार, अज़ान सुबह में ज्यादा देर नहीं। सिपाही नमाज के लिए उठने वाले हैं। जल्दी करो सरदार, आओ। बस यही? सरदार, ये थोड़ा सा तोहफा अमीर की तरफ से है। बाकी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। बदबख्त समझता है बेअर्जिश चंद सोने के सिक्कों से मुझे खरीद लेगा। हिंदा की औलाद समझती है कि मेरे दिलो जान में शैतानी रखना डाल दे और मेरी रूह को धोखा दे दे। मैंने तुझे कत्ल नहीं किया, मैंने अपने नफ्से अम्मारा को कत्ल किया है। मैंने अपने बातिनी शैतान के सीने में खंजर भोंक दिया है। ये मेरा जिहाद अकबर था, वो खंजर जो तेरे सीने में उतरा। तू समझता है मुझे वसवसे में डालना कोई मामूली काम है? मैंने सिफ़ीन में तलवार चलाई, अली मुर्तजा के साथ साथ जंग की और दसियों लोगों को वासिले जहन्नम किया। और अब चंद सिक्कों की खातिर मैं अपना ईमान बेच दूं और रसूल खुदा के बेटे को तन्हा छोड़ दूं? देखो, इन सिक्कों को देखो। शिकारी ने दाने डाले हैं ताकि मेरी जैसी मुर्गी का शिकार करे। मेरी जैसी मुर्गी। लेकिन मैं ऐसी मुर्गी हूं कि दाने भी उठा लूंगी और उनके जाल में भी नहीं आऊंगी।
सरदार, हाँ, क्या हुआ? मुझको नहीं मालूम, खुद आके देखो। तुम्हें यकीन है वो छावनी से अकेला बाहर गया है? हाँ, वो खेमे से निकला और तेजी से चलने लगा। मैंने कहा, सरदार कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, दूर हो जाओ, मेरे करीब मत आओ। दौड़ता हुआ सिपाहियों में से निकल गया और शहर के अंधेरे में गुम हो गया। उसकी कोई निशानी भी तो नहीं। अब क्या करें? इससे आगे भी तो हम नहीं जा सकते। दमिश्क का लश्कर इसी पहाड़ के पीछे है। हो सकता है उनके सिपाहियों के साथ मुकाबला हो जाए। बेहतर है हम लोग वापस चलें, शायद वो छावनी के अंदर वापस आ गया हो। अहमद, वो देखो, हाँ वही है। वहां क्या कर रहे हैं? पत्थरों को उठाता है, फिर कुछ ढूंढता है। नहीं मालूम क्या करना चाहता है। बेहतर है हम उसके पास चलें। चलो आओ चलें। ए क्या हुआ? उतर जाओ, तुम इधर ही रुको। मैं नहीं चाहता वो हमें देख ले। शायद कोई राज की बात हो। ओह, वो देखो उधर। सरदार, वापस जाओ, चले जाओ, मेरे करीब मत आओ। क्या कर रहे हो सरदार? किस चीज की तलाश है? छावनी वापस चले जाओ, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। सरदार, आगे मत आना, वरना तुम दोनों को वसीले जहन्नम कर दूंगा। पागल हो गया, गुस्से से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके आगे मत जाओ, आगे दुश्मनों का लश्कर है, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। तुम अपनी फिक्र करो, वापस जाओ। शैतान का तीर हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मैंने सालों जंगें लड़ी हैं, तलवार चलाई है। इस ये क्या ढूंढ रहा है? नहीं मालूम, लेकिन जो भी वो ढूंढ रहा है उसे मिल रहा है। अब हम क्या करें? नहीं मालूम। मेरे करीब मत आना, वरना तुम सबको हलाक कर दूंगा।
آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آیا ہوں. ابھی اسے پکڑ لیں گے. اس دیوانے نے سب کچھ خراب کر دیا. تلائیا کے سردار کو جو پکڑ لیں. یہ کیا؟ سونے کا سکہ. وہ دیکھو ادھر. اب سمجھ آئی وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا. ہم نے آپس میں گفتگو کی تھی اور طے کیا تھا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی 2000 سوار کے ساتھ نخیلا میں رہیں گے. ہم انتظار کرتے رہے لیکن تمہاری کوئی خبر نہیں. کیا ہوا؟ کیوں اب تک قدم رکاب میں نہیں رکھا؟ شاید اس سے بہتر وقت تمہارے بیٹوں کی شادی کے لیے نہیں تھا. قیس تانے مت تو، شادی سنت رسول خدا ہے. تم نہیں چاہو گے کہ یہ سنت روک دی جائے. میں نے روکنے کو نہیں کہا ہے. اگر تم کہو گے بھی تو ہم نہیں روکیں گے. یہ مت کہو کہ ہم نے وعدہ وفا نہیں کیا. ہم کر نہیں سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے. تم خود بھی جانتے ہو کہ فصل گزر چکی ہے. زمین بونے کا وقت ہے. اگر نہ جوتیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تنوروں میں روٹی دکھائی نہیں دے گی، ماؤں کا دودھ خشک ہو جائے گا، بچے جدا ہو جائیں گے، لوگ بھوکے رہ جائیں گے اور بے موت مر جائیں گے. بے موت مرنا رسول خدا کے پیرووں کو نقصان پہنچائے. تو کیا حسن ابن علی ایسی مصیبتوں سے راضی ہوں گے؟ منظر، خدا کی قسم تمہاری باتوں سے قوم بنی اسرائیل کی یاد آتی. قیس تم مہمان ہو، تمہارا احترام واجب، لیکن اپنی حد سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تم مسلمانوں کو منکر رسول خدا کے برابر سمجھتے ہو. ٹھیک ہے منظر، یہ آدمی کون ہے؟ اس کی شکل و صورت تو بدلیوں میں نہیں ملتی، کوفیوں سے بھی نہیں ہے. اہل دمشق ہے. دمشق سے بھیجا گیا ہے ہندا کے بیٹے کا پیغام لے کے. کس چیز سے خریدا ہے تمہارا ایمان؟ سونے کے سکوں سے. کتنے سکوں میں بیچا ہے فرزند رسول خدا کی بیعت کو؟ منظر، تم نے کہا میں مسلمانوں کو منکر رسول خدا کے برابر سمجھتا ہوں.
नहीं, लेकिन झूठों, अहद शिकनों, आफियत तलबों और उनको जिन्होंने फर्जंद अली मुर्तजा को मुआविया के मुकाबिल बेच डाला है, लायक है कि एक तलवार की वार से सफ़े हस्ती से मिटा डालूं। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उसकी वजह हमारे आका ने इजाजत नहीं दी है। यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर। लोगों नुखेला पहुंचो, दुश्मन ने दीन को निशाना बनाया है, दुश्मन ने दीन को निशाना बनाया है। अगर जंग शुरू हो गई तो हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? नहीं मालूम क्या होगा। चलो उठो चले। अय्युहन्नास नुखेला जाओ, दुश्मन के हमले से गाफिल न रहो। गद्दार दुश्मन ने दीन इलाही को निशाना बनाया है। नुखेला जाओ और अपने अपने हथियार संभाल लो। खुदा के दुश्मन शामियों ने हमला कर दिया है। जाओ नुखेला जाओ। अय्युहन्नास अपनी तलवारें उठा लो और नुखेला पहुंचो। दीन खुदा के दुश्मन ने तुम पर हमला कर दिया है। अय्युहन्नास नुखेला पहुंचो, खुदा के दुश्मन शामियों ने तुम पर हमला कर दिया है। नुखेला पहुंचो और अपनी तलवारें उठा लो। ए लोगो, अपने हथियार लेके नुखेला पहुंचो। दुश्मन खुदा ने तुम पर हमला कर दिया है। शामियों ने तुम्हारी सरजमीन पर हमला कर दिया है। अपने अपने हथियार उठा लो और दुश्मन के खिलाफ जिहाद करो। ए लोगो, नुखेला पहुंचो। ए लोगो, शामियों ने हमला कर दिया है। अपने अपने हथियार उठा लो और नुखेला पहुंचो। जल्दी करो, नुखेला की तरफ पहुंचो। यहाँ क्या कर रहे हो? नुखेला नहीं गए? हारिस, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? अब समझो कि क्यों अली इब्न अबी तालिब ने इस गिरोह से नजात के लिए अपना सर कुएं में किया। हमें साफ साफ कहो, आप बुजुर्गों को हमसे क्या चाहिए? हम लोग हसन इब्न अली के लश्कर के साथ मुल्हक हो जाएं या नहीं? नहीं होना है। अच्छा, तो मुल्हक नहीं होना है। ये तो काफी। अगर हसन इब्न अली के साथ शामिल होने का कहोगे, इसका 10 गुना भी दोगे तो कम है। क्या तुमने हसन इब्न अली के साथ बैत नहीं की थी? क्यों नहीं, सुलह में की थी। लेकिन जब जंग होगी, सोने के सिक्कों की छनकार पे तलवार चलाएंगे। चलो अब चलते हैं, मामला खत्म हो गया। रुको, कोई मामला नहीं था। हम तो पहले से ही अबा मोहम्मद के लश्कर में मुल्हक नहीं होना चाहते थे। अगर तुम राजी हो तो तुमसे मामला करते हैं। मामला? अब तुमसे कोई मामला हम नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसी खबर है जो तुम्हारे लिए 10 सोने की थैलियां कीमत रखती है। क्या इस बयाबान में कोई खबर है जो खरीद फरोश के काबिल हो? चलो, अगर तुम्हारे काबिल हो तो 5 थैलियां दे देना। पहले वो खबर सुनाओ।
अगर खबर अच्छी हो तो शायद मामला हो जाए। अगर मैं कहूं कि किंदी अबा मोहम्मद के हरावल दस्ते का सालार मुआविया से मुल्हक हो गया है तो क्या कहोगे? हैं? झूठ बोल रहे हो? ओए, मेहमान है। इज्जत और मकाम रखने वाले बुजुर्गों, झूठ हमारे लिए ऐब है। क्या ये सच है? किंदी मुआविया से मिल गया है? यकीन करो, सच कह रहा हूं। सलाम सलाम। यही चंद लोग तेनीन और बनी शेबान के हैं जिन्होंने अबा मोहम्मद को लब्बैक कहा है और हमारे साथ हो गए। वैसे तो चंद और कबीलों ने वादा किया है, लेकिन अक्सर ने बहाना किया है। किंदी भाग गया है। किंदी? हाँ, मुआविया से मुल्हक हो गया है। चलो।